Happy Teachers Day, sir. Happy Teachers Day, sir. Thank you, बच्चों. Thank you. Happy Teachers Day, sir. Happy Teachers Day, sir. Happy Thank you. Teachers Day, sir. Thank you. Happy Teachers Day, sir. Thank you. Happy Teachers Day, sir. Thank you. Happy Teachers Day, Deepak sir. Thank you. Happy Teachers Day, sir. Thank you, Ujjwal. Happy Teachers Day, sir. Thank you. Happy Teachers Day, sir. Thank you. Happy Teachers Day, sir. Thank you to all. Sir. Happy Teachers Day, sir. Thank you. थोड़ी देर से रुक जाइए, किसी तरह भी ज्वाइन नहीं की है। Happy Teachers Day, sir. Thank you. Happy Teachers Day, sir. Thank you to all. Happy Teachers Day, sir. एमएसपी सर को ज्वाइन करने थे, उसका फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? Sure. देख लो, स्टार्ट होने से पहले एक रूल है, जब कोई कुछ बोल रहा हो या फिर परफॉर्मेंस दे रहा हो तो प्लीज अपना माइक ऑन करके उसको डिस्टर्ब मत करना। एक तो बहुत मुश्किल से सबको पटियाएं बोलने के लिए। और कैमरा ऑन कर लेगा सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा सब। तो चलो शुरू करते हैं। एक कोशिश जो कामयाब हुई ऑनलाइन पढ़ाने की आपने शुरू की थी, एक कोशिश आपको थैंक यू बोलने की हम शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन। मैं एक बहुत बुरा एंकर हूँ लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। आज मैं लड़खड़ाऊंगा, घबराऊंगा, कभी थम जाऊंगा, लेकिन टूटूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, क्योंकि सर मुझे पता है आप हैं मेरे बुराइयों में भी अच्छाई खोज के ऊंचाइयों तक ले जाने वाले। तो अब I will love to invite Miss Punita for addressing us from her beautiful words. Miss Punita, tantana, entry. Happy Teachers Day, sir. Thank you. Thank you. As we all know, we have gathered to celebrate Teachers Day virtually. Let me take this opportunity to thank our teachers who have been working very hard to teach us online. Taking education to the next level, this year may have given us tough times, but our teachers have surely been a ray of hope. From guiding us to motivating us, this year our respect for teachers worldwide has grown immensely. We know it has been challenging for each one of us, but teachers have been our lockdown mentors. They have supported us throughout and helped us cope with online classes and tests. In these tough times, I would like to thank all teachers on behalf of each and every student present here for your unwavering support. Thank you so much for guiding us and inspiring us. A big round of applause for Punita. Tantana, tantana, ताली बजा दो यार। जितना हमारी माँ पीड़ा उठाती है हमें जन्म देने को, जितना हमारे पिता सामाजिक परेशानियां झेलते हैं, उतना ही दर्द, उतनी ही परेशानियां हमारे शिक्षक हमें ज्ञान देने को झेलते हैं और हमें ऊंचाइयों के शिखर तक ले जाते हैं। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा हर्षित को उसके प्यारे से शब्द से सर को सहराने के लिए। हर्षित, आपकी बारी। Good morning to all. Happy Teachers Day, sir. Thank you. यदि हम नदी हैं तो आप बहता जल हैं, यदि हम वृक्ष हैं तो आप वृक्ष की पत्तियां हैं, यदि हम किताबें हैं तो आप ज्ञान का भंडार हैं, यदि हम आकाश हैं तो आप वो सूर्य हैं जो प्रकाश के रूप में हमें ज्ञान देते हैं। That's all. Thank you. वो थैंक यू हर्षित। चलो, एक घर जिसमें छत जरूरी होती है, कमरे जरूरी होते हैं, लेकिन इन सबको जरूरत है पिलर्स की टू स्टैंड, and our non-teaching staff
of Pathshala family is the pillars. And we all thank you. We all बच्चे जो थोड़े से बड़े हो चुके हैं, thank you to our non-teaching staffs. Thank you to all ma'am, Priyanka ma'am, Shalu ma'am, Rahul sir, Rakesh sir, and Shakti sir. Thank you for helping us and being our pillars. Now, I would love to welcome Shivam Hota with his beautiful poem to appreciate our non-teaching and teaching staff. Shivam Hota, welcome. सबसे पहले तो शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं सर आप सबको। सर कुछ लिखे हैं आप लोग के लिए, सुनिए। सर आज के दिन शिक्षक दिवस है तो हम सब मनाते हैं। जिनके पास हमेशा पेन होता है उनको भी एक एक पेन पकड़ाते हैं। इस बार परिस्थिति अलग है, हम आपको पेन तो नहीं दे पा रहे हैं, पर प्यार इतना है कि कुछ करना चाह रहे हैं। शिक्षक का काम बड़ा मुश्किल है, हर कोई नहीं कर पाता है। नहीं समझने पर दोबारा समझाना पड़ेगा, यही सोच के डर जाता है। ऐसा काम है सर आपका, कितना धैर्य रखना पड़ता होगा। जब मेहनत करने पर भी रिजल्ट ना मिले तो कितना क्रोध चढ़ता होगा, पर स्वभाव को शांत रखने के लिए उस क्रोध को भी शांत करना पड़ता होगा। ये मात्र एक जॉब है, हमको तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर कोई और होता तो काम करता, पैसा लेता और चलता। सर आपको हम थैंक यू बोल रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका प्रयास के हमारा थैंक यू का कोई औकात नहीं है। सर एटॉमिक लेवल का फ्यूचर है हमारा, ब्लैक बॉडी से भी ब्लैक है, जिसको फोटोन से भरने का आप क्षमता रखते हैं। तैयारी हो रहा है कि नहीं, मंडे टेस्ट से ये परखते हैं। सर इतना करने के बाद हमारी हर गलती पे हमें डांटने का हक तो जरूर रखते हैं। कभी कभी नहीं आता सर मार्क्स, उसके लिए माफ कीजिएगा। सर हम मेहनत कर रहे हैं, हम पर विश्वास करिएगा। आप हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, इस पर हमें शक नहीं है, पर हमें आपके जैसे शिक्षक मिले ये सिर्फ हमारा लक नहीं है। 3 मेंटर है हमारे, तीनों बड़े निराले हैं, मेहनती हैं, टैलेंटेड हैं और बहुत भोले भाले हैं। सीएबी सर की कहानी सुना के समझाने की आदत है, पीडीके सर ने तो दोस्त बना दिया है, और मूर्खता भरे प्रश्नों का भी हंस के जवाब देना का ठेका एमएसवी सर ने लिया है। अभी तक आपसे मिले तो नहीं है, पर कुछ बातें आपकी जानी हैं। बस सर सेंटर खोल दीजिए, ऑनलाइन पढ़ने में बड़ी परेशानी है। शुक्रिया सर, धन्यवाद। थैंक यू शिवम। सर पता है, सोचे ना कि ऑनलाइन चल रहा है तो ऑनलाइन गिफ्ट भिजवा दें, ठीक है। तो फिर हम को बड़ा आदमी से पूछें कुछ ऐसा बताओ ना कि हमको मरने के बाद ही सब जानेगा। तो बड़ा आदमी बोला कि तुम उधार लेके मरो, जीवन भर पहचानेगा। तो इसीलिए नहीं पहचाने, सोचे उधारे रखते हैं। गुड गुड गुड। भले ही ये आवाज मेरी हो, भले ही ये आवाज मेरी हो, लेकिन शब्द हम सबके हैं, भावनाएं हम सबकी है। शुक्रिया हम सब कह रहे हैं। जीवन बनता है यादों से, संघर्ष से और एक्सपीरियंस से। हम चाहते हैं आप अपने स्कूल कॉलेज की कुछ यादें हमसे शेयर करें, ताकि हम आपके एक्सपीरियंस, आपके संघर्ष, आपकी यादों से अपना जीवन सफल कर सके। तो अल्फाबेट वाइज सबसे पहले सी फॉर कैप सर, सी फॉर केमिस्ट्री सर, आपकी बारी अपनी यादें शेयर करने की। ये हमारा होमवर्क था सर। सीपीपी। देखो बच्चों, वैसे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी एक पढ़ाई की इम्पोर्टेंस क्या होती है इस पे एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूंगा, ठीक है। एक्चुअली ये मेरे साथ खुद हुआ था। बच्चों क्या होता है ना कि जनरली हम पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ने का मोटिव क्या है, ठीक है, ये बच्चे को पता ही नहीं होता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ, ठीक है। जब मैं क्लास 6, 7, 8, 6 में था, तब की मैं बात बता रहा हूँ आपको। क्लास 6 में जैसे नई क्लास में जाते हम भी गए, पहला टर्म एग्जाम होता, फर्स्ट टर्म वो मेरा भी हुआ, मार्क्स आए, ठीक है। और तब तक हमको मार्क्स का कोई आइडिया भी नहीं था। देखिए, एक तो वो समय भी काफी पुराना था, और मार्क्स का कोई आइडिया भी नहीं था कि मार्क्स होते क्या है, क्यों मार्क्स आते हैं, कोई आइडिया। क्लास 6 तक हमको आइडिया नहीं मार्क्स क्यों आते हैं। तो रिजल्ट आया, ठीक है। रिजल्ट में ऐसा था कि हमारे यहाँ 20 नंबर का एक पेपर जो होता था, जो फर्स्ट टर्म का 20 नंबर का होता था, 7 मार्क्स पासिंग मार्क्स होते थे उसमें, ठीक है। रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में ऑब्वियस सी बात है मार्क्स आए, कितने आए बताने की चीज नहीं, लेकिन आए, ठीक है। और
इसके बाद हमारे एक सर थे, केमिस्ट्री के सर थे हमारे, वो क्लास में आए और मतलब उस क्लास में तो वो क्लास में आए और हमसे पूछा मतलब कितने सब्जेक्ट में फेल हो। उनका क्वेश्चन था कितने सब्जेक्ट में फेल हो। तो हमको ये भी आइडिया नहीं था जब फेल किसको बोलते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि बच्चा कितने सब्जेक्ट में 7 से कम मार्क्स आए ये बताओ। ठीक है, तो बच्चों ये मैं अपना इसलिए एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि उस लेवल में आज की डेट में बच्चे अवेयर होते हैं। सारे बच्चे जो अवेयरनेस आपके अंदर है, अवेयरनेस मेरे अंदर भी अभी है, बहुत से बच्चे में अवेयरनेस, लेकिन देयर आर मैनी स्टूडेंट्स मींस मोर देन 50, 60, 70% स्टूडेंट ऐसे इनको अवेयरनेस नहीं है कि वो पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ने का रीजन क्या है, मोटो क्या है। तो टीचर ने पूछा कितने सब्जेक्ट में आप फेल हैं। मेरे को ये इनोसेंस मेरा है, उस समय उस लेवल मेरी नॉलेज के बारे में बात करिए कि ये नहीं पता था फेल किसको बोलते हैं। ठीक है, और तो फिर टीचर ने रिपीट किया अपना क्वेश्चन, कितने सब्जेक्ट में 3 से 7 से कम नंबर आए आउट ऑफ 20। तो मेरा जवाब था कि सर सिर्फ 3, मतलब ओनली 3। तो पहली बार जब मैंने ओनली वर्ड यूज किया, ओनली 3, तो पहले तो मेरा टीचर उसको सुन के काफी देर तक हंसते रहे। एक तो आउट ऑफ 5 या 6 सब्जेक्ट जो 10th में 6 में होते हैं उसमें 3 में हम फेल थे, और उसके बाद इन्होंने वर्ड यूज किया था ओनली 3। ठीक है, तो उस क्लास में फिर टीचर ने मुझे एक्सप्लेन किया, बच्चों 3 सब्जेक्ट में फेल होने के बाद टीचर ने मुझे एक्सप्लेन किया कि नहीं बेटा, फेल होना अच्छी बात नहीं होती है, और बहुत सी चीजें बताई कि यहाँ 7 मार्क्स से कम पे फेल होता है। तो ऐसे और भी चीजें मेरे दिमाग में धीरे धीरे उन्होंने समझाई। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि पढ़ाई जो होता है उसमें 7 मार्क्स जो होते हैं, 7 मार्क्स से कम आने पे फेल बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद से खैर चलो मैंने भी अपना चैलेंज लिया और उसके बाद कभी उससे कम मार्क्स नहीं आए और कभी फेल नहीं हुए। लेकिन मैं इसमें से आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस ये शेयर करना चाहता हूँ, कई बार आपको नॉलेज होती ही नहीं हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसलिए आप रैंडमली काम करते हैं। ठीक है, रैंडमली काम करते हैं, लेकिन एक बार जब मोटो मिल जाता, नहीं यार इसको फेल बोलते हैं, ये हमारा टारगेट है, हमारा टारगेट 7 से कम नहीं आना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए। आज की डेट में तो बच्चों के बहुत मार्क्स आते हैं, उस समय ऐसा नहीं था, उस समय बहुत कम मार्क्स आते थे। ठीक है, तो 7 मार्क्स को फेल बोलते हैं, हमें मतलब हमें ये नॉलेज नहीं थी कि 7 को फेल बोलते हैं। धीरे धीरे नॉलेज हुआ, टीचर ने समझाया। सर आपको एक मिनट ये मेरे टीचर थे जो बच्चों 7 से कम पे फेल होता और आना नहीं चाहिए, आना बुरी बात होती है उसके और उन्होंने प्रॉपर तरीके से गाइड भी किया। ठीक है, उनके गाइडेंस के बाद ये हुआ बच्चों कि हमने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और आज जिस केमिस्ट्री सब्जेक्ट में मैं फेल था क्लास 6 में, आज वही केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ जहाँ तक मुझे लगता है। यही मेरा एक्सपीरियंस है। बहुत बढ़िया सर। सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं आपको हाँ बच्चों, आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए कि करना क्या है। मुझे पता ही नहीं था कि 7 मार्क्स लाने, तो मैं रैंडमली कुछ भी लिखा था एग्जाम। अब मुझे पता है टारगेट, आपको सामने दिखता है कि इतना हमें करना है, तो आप करते हैं और अंदर से आपको मोटिव मिलता है। मैं भी कर रहा हूँ और आप भी करिए, अपनी लाइफ का टारगेट ढूंढिए। आपको जेईई मेन में कितने मार्क्स लाना है इसका टारगेट बना लीजिए। पहले जेईई मेन में पहले कितना लाना, फिर जेईई एडवांस में कितना लाना है। जब आपको पता रहेगा ये इतना मार्क्स हमको लाना, फिर आप उसके लिए प्रयास करेंगे। ये नहीं कि हमको जेईई मेन देना है, जेईई मेन देना है, जेईई एडवांस देना तो सबको है, लेकिन टारगेट क्या हमारा? खाली एग्जाम देना टारगेट नहीं, उसमें मार्क्स लाना टारगेट है, रैंक लाना टारगेट है। हमारे 7 मार्क्स का टारगेट हमको नहीं पता था, हम फेल हो जाते थे। अरे आप अपना टारगेट करिए, आप टारगेट सेट करिए कि हमको जेईई एडवांस जेईई मेंस 300 का होता है, हमें 260 लाना है, तब ना मार्क्स आएंगे। आप टारगेट ही सेट नहीं करो, मेरी तरफ फेल होगे फिर। इसलिए टारगेट सेट करो कि हमको क्या टारगेट रखना है। 300 में हमें 200 लाना है, 210 लाना है, 250 लाना, अभी से टारगेट सेट करो और उसी टारगेट के लिए काम करो हमेशा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। थैंक यू सर, आपने बिल्कुल सच बोला सर। ये कुछ दिनों पहले की ही बात है, मैं बहुत परेशान था। 120 में से मेरे 4 नंबर आए थे वो मंडे टेस्ट में। रात भर रोया, फिर रात भर 1 बजे के लमसम में मैंने तीनों सर को मैसेज किया, सर आई एम इन प्रॉब्लम, और तीनों सर का बस कुछ ही मिनटों में आया था रिप्लाई, हमें गाइड करने के लिए सर। इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रिया है। और मुझे पता है सिर्फ मेरे साथ नहीं, आप हम सब बच्चों के साथ खड़े हैं, चाहे वो रात का 1 बज रहा हो या फिर दोपहर के अभी 1 बज रहे हो। थैंक यू सर। Now, I would love to invite Maths MSP sir for his experience sharing. अरे मेरा कोई ऐसा मेरा जो बेसिक एजुकेशन हुआ ना, मैं मतलब अपने गांव में रहता था, है ना, वहीं से, और वहीं से मेरा 12th हुआ। तो
गांव का माहौल तो बहुत ही मतलब समझते हो कैसा रहता है ना। पढ़ाई का उतना अच्छा माहौल होता नहीं है, ठीक है। तो पहले हम लोग भी बहुत क्रिकेट वगैरह खेलते थे, बहुत क्रिकेट खेलते थे, है ना। क्रिकेट खेलते थे, शाम में फुटबॉल खेलते थे, यही सब रहता था। पढ़ाई भी करते थे बट उतना कोई एम नहीं था, मतलब एमलेस थी लाइफ, है ना। 10th कर लिया, 10th के बाद फिर हम लोग 11th में पूरा रेस्ट करते थे, फिर देखते थे अच्छा बोर्ड आ गया, चलो बोर्ड के लिए पढ़ना, इस टाइप से रहता था। कोई टारगेट ही नहीं था, मतलब कोई बताने वाला नहीं था कि तुमको करना क्या है। तो ऐसा ही था। जस्ट बोर्ड के एग्जाम मैंने दिए थे क्लास 12, है ना। उसके बाद हम लोग ऐसे ही क्रिकेट खेलने जाते थे इधर उधर। तो एक बार ऐसे नाइट मैच हम लोग खेल रहे थे, नाइट टूर्नामेंट चल रहा था हम लोग का। तो काफी ज्यादा क्राउड थी वहां पे और मैं बॉलिंग कर रहा था, ठीक है। तो मेरा भी कहीं ना कहीं एम था कि यार थोड़ा इसमें देखते हैं, क्रिकेट में अगर कुछ करियर बनेगा तो किया जाएगा इसी में कुछ, है ना। क्योंकि तो हुआ क्या कि उस समय एक बैट्समैन था, ठीक है। मैं बॉलिंग कर रहा था, उसने मेरे एक ही ओवर में 4-5 छक्के मारे नाइट टूर्नामेंट में। और काफी लोग मुझे जानते भी थे कि ये बहुत अच्छा मतलब खेलता है, ठीक ठाक खेलता है लड़का। तो 4-5 छक्के जब उसने मेरे एक ओवर में मारे तो मुझे लगा कि यार मैं जा किधर रहा हूँ, लग रहा मेरी कहानी तो खत्म हो जाएगी, है ना। मुझे बहुत ही अजीब सा लगा। मुझे लगा कि यार बोर्ड मैंने पास कर लिया है और मैं देख रहा हूँ कि इतना मतलब इतना सही खेलने के बावजूद जो है ये 4-5 छक्के मतलब एक प्लेयर ने मेरे ऊपर लगा दिए हैं। तो मुझे लगा कि यार अब यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि इसमें अब कोई मतलब मुझे लग नहीं रहा है इसमें कुछ है अब, है ना। तो फिर मैं वहां से निकल गया कानपुर। कानपुर हमारे यहाँ से पड़ता है 150 किलोमीटर है यहाँ से। तो फिर मैंने घर पे बोला कि नहीं अब मैं जा रहा हूँ कानपुर। कानपुर निकल गया। कानपुर निकलने के बाद ही मेरी लाइफ चेंज हुई। वहां गया, वहां मैंने फिर देखा कि मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी थे कुछ लोग वहां पे, है ना। तो फिर थोड़ा सा शुरुआत में काफी स्ट्रगल किया मैंने, काफी स्ट्रगल किया। फिर कानपुर में माहौल देखा कि अच्छा कुछ लोग पढ़ रहे हैं, तो फिर मैंने भी सीरियसली लिया पढ़ाई को, है ना। और फिर मैंने देखा कि वहाँ एक कोचिंग उसी समय मेरे दिमाग में आया। वहाँ पे कानपुर में भी बहुत अच्छा कोचिंग का हिसाब किताब था। लोग काफी बड़े बड़े टीचर्स थे वहाँ पे। उनको मैंने देखा कि यार ये लोग वाकई मतलब कितने बड़े बड़े टीचर्स हैं। एक वहाँ पे आशीष बिश्नोई सर थे जो मैथ्स पढ़ाते थे। मैंने उनको अपना आइडियल माना, है ना। मैंने मन ही मन में उनको अपना गुरु मान लिया। मैंने कहा ये तो बहुत ही मतलब बढ़िया टीचर है और आज भी मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। और मैं काफी कुछ मैंने उनसे सीखा, है ना। और फिर मैंने मैथ्स में ही अपना करियर बनना चाहा। मैंने कहा कि अब जो है मैथमेटिक्स में ही करना है, क्योंकि बाकी तो काफी कुछ निकल ही चुका था मेरे हाथ से। और तब से फिर मैंने मैथ्स को ही चूज किया और फिर दिख रहा है आजकल, है ना। थैंक यू यही सर। है मेरा। कहते हैं ना क्रिकेटर या फिर माही तो हम भी बन जाते, बस कमी थी कियारा आडवाणी जैसे हीरोइन की, तो वो मिली नहीं। अब सर मैं वेलकम करना चाहूंगा फिजिक्स सर को, आर पीडी के सर, आर चिल फॉर चिलम सर। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो गुड आफ्टरनून Good afternoon, sir. आफ्टरनून सर। समय इतना बीत चुका है कि बहुत सारा स्टोरी उतना कलेक्ट हो नहीं पाता है, लेकिन जो एक चीज जो आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है वो हम शेयर करना चाहेंगे। अक्सर हम लोग आप लोग खुद क्या देखते हैं, जो नया जो जनरेशन है, छोटा छोटा सा जो डिबैकल होता है ना, छोटा छोटा सा डिफीट, नंबर नहीं आया, या एक टेस्ट के लिए खूब पढ़े और उस टेस्ट में ही नंबर नहीं आया, तो फिर अगले बार से मतलब कि एकदम डिमोटिवेट हो जाना कि अब क्या है, इतना तो पढ़े थे फिर भी टेस्ट में इतना कम नंबर आया। तो आप लोग इतनी जल्दी हार मानते हैं ना, जो नया जनरेशन में हम देखे हैं वो थोड़ा डिस्टर्बिंग है। हमारे समय में क्या होता था कि महीने महीने भर तक बच्चे, ये 2 महीने 3 महीने, हो सकता था पूरा 11th क्लास ही, बहुत कम मार्क्स आ रहा है बच्चों का, लेकिन वो लगे हुए रहते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई को मतलब बहुत मार्क्स से बहुत ही ज्यादा जोर लिए इस तरह से कि वो डिमोटिवेट हो जाए। मार्क्स से जोड़िए, लेकिन मोटिवेट होने के लिए। कम मार्क्स आता है तो और पढ़िए और थोड़ा एनालिसिस कीजिए। आप लोग में हम क्या देखते हैं ना कि थोड़ा मार्क्स कम आया, डिमोटिवेट हो गए, गाने सुनने लगे, खेलने लगे, वीडियो गेम करने लगे। तो हमको लगता है कि इतना कम पेशेंस लेवल है क्या। तो हम कहेंगे ना कि ये मत कीजिए। और सबसे पहली बात कि अपने आप का रेस्पेक्ट कीजिए, बाकी को छोड़िए, रेस्पेक्ट योरसेल्फ। जब कभी आप इस तरह से इतनी जल्दी हार मानते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि आप अपने आप का डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। यू डिसरेस्पेक्ट योरसेल्फ।
अपने आप को, अपने पेरेंट्स का डिसरिस्पेक्ट, कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे क्या यही कल्चर दिया है, क्या यही मेंटल स्ट्रेंथ दिया है कि हम ये 2 टेस्ट में 3 टेस्ट में इतनी जल्दी हार मान जाते हैं। बहुत लोग ऐसे हुए हैं जो 70 इयर्स ऑफ एज पे जाके ना सक्सेसफुल हुए हैं। अब्राहम लिंकन जो थे वो 50 टाइम्स अपने लाइफ में 49 टाइम्स हर इलेक्शन हारे, राइट फ्रॉम म्युनिसिपैलिटी लेवल अप टू द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अब्राहम लिंकन हारे हैं, ये आप सबको हम बता दें। और वो जो जीते इलेक्शन वो था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो कभी कभी क्या होता है ना, लाइफ आपके लिए कुछ ज्यादा ही आपके लिए छुपा के रखता है, बहुत सरप्राइज छुपा के रखता है। तो आप जज मत बनिए, आप वॉरियर हैं, एक्टर हैं, आप बस रोल प्ले कीजिए अच्छे से। एक स्टूडेंट का रोल प्ले कीजिए, एक बच्चे का, एक बेटे का, ठीक है ना। आप जज मत बनिए तुरंत लाइफ के बारे में कि मतलब नहीं नहीं अब तो कुछ नहीं होना या फिर बहुत कुछ होना है, दोनों ही चीज से बचिए। लेट द टाइम प्ले इट्स ओन रोल। आपके लिए क्या रखा हुआ फ्यूचर में आप नहीं जानते हैं, इट इज अ मिस्ट्री। फ्यूचर आपके लिए मिस्ट्री है, बहुत वंडरफुल मिस्ट्री है, तभी तो आप जीते हैं ना। अगर लाइफ में हर चीज सर्टेन हो जाए तो आप लोग कभी नहीं जी पाइएगा। द अनसर्टेनिटी इन लाइफ मेक्स यू लीव, उस चीज को एंजॉय कीजिए, हम ये कहना चाहते हैं, ठीक है ना। मतलब इतना जल्दी हतोत्साहित मत होइए चीजों को लेके। तो हम अपने क्लास, अपने समय का जो हमारे एक सर थे, विकास तिवारी सर थे, वो हमें पढ़ाते थे उस समय। जेई का तैयारी जब हम करते थे तो विकास तिवारी सर मैथ्स पढ़ाते थे, अभी भी पढ़ाते हैं, कहीं और पढ़ाते हैं। वो एक रियल स्टोरी शेयर किए थे जो फिटजी से रिलेटेड था उस समय। आप लोग को पता होगा कि 12th पास स्टूडेंट्स के लिए एक बैच चलता है, टारगेट बैच चलता है। यस सर। तो एक कानपुर से एक स्टूडेंट ना साउथ दिल्ली पहुंचा था, साउथ दिल्ली, और वो पूरा पास आउट बच्चों का एक वो ग्रुप था, वो क्लास, और विकास तिवारी सर को क्लास लेना था। तो एक फॉर्मल इंट्रो में सारे बच्चों से पूछ रहे थे कि आप कहाँ से आए हैं, आपका क्या पुराना एग्जाम में क्या परफॉर्मेंस रहा है, कुछ शेयर कीजिए। तो उसी में से एक लड़का था जो कानपुर से आया था, वो खड़ा हुआ ना, तो उससे पूछे सर विकास तिवारी सर कि आपका रैंक क्या आया था, मतलब अगर कोई एग्जाम दिए थे तो कोई रैंक क्या आया था। तो उसने बोला ना कि सर हम लास्ट ईयर आईआईटी दिए हैं। उस समय आपको पता होगा सब्जेक्टिव हुआ करता था बहुत पहले, 2005 से पहले, यस सर, पता है ना। तो उन और सीट्स कब काफी कम रहता था, 2000 के आसपास। तो उस लड़के का रैंक था 1300, उसने शेयर किया। तो बाकी सारे क्लास वाले ना, इवन इंक्लूडिंग विकास तिवारी सर, बहुत ज्यादा सरप्राइज थे कि ये लड़का क्यों आ गया यहाँ पे रिपीट करने, क्या पता अगले बार इसको वो भी रैंक नहीं आएगा। लाइक अ ह्यूमन बीइंग, एक फियर होता है ना कि क्या पता अगली बार भगवान वो भी ना दे, इस टाइप का टेंडेंसी होता है। तो सब हंसने लगे। तो 1300 रैंक बोला उसने। तो विकास तिवारी सर भी जो है ना, उस बच्चे की उस भावना का कदर नहीं कर पाए, मतलब वो उनसे भी रहा नहीं गया। वो पूछे कि तुम क्या एक्सपेक्ट करते थे रैंक, जो तुम 1300 पे यहाँ आ गए तैयारी करने। तो बाकी बच्चे तो बहुत लाइटली ले रहे थे इस बात को, लेकिन वो बच्चा बहुत सीरियस होकर बोला कि सर मैं रैंक 1 डिजर्व करता हूँ। इस बात पे सारा क्लास जो है ना मजाक में ठहाका उड़ा दिया, इंक्लूडिंग विकास तिवारी सर। ये खुद सर ने शेयर किया था, लेकिन वो बच्चा टोटली सीरियस था उस समय कि सर मैं रैंक 1 डिजर्व करता हूँ। तो मैटर ये रखता है ना कि आप अपने बारे में क्या विजन रखते हैं। सारा दुनिया इंक्लूडिंग योर टीचर्स आपको कितना छोटा समझते हैं, दैट डजंट मैटर मेरे हिसाब से। व्हाट इज द लेवल ऑफ रेस्पेक्ट विच यू पोजेस फॉर योरसेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पूरे एपिसोड से मुझे ये सीखने को मिला। और आपको हम बता दें, वो लड़का जो है जब दोबारा एग्जाम दिया तो उसका रैंक 1 तो नहीं था, लेकिन रैंक 72 था, और उसको आईआईटी कानपुर में कंप्यूटर साइंस मिला था। तो देखिए, रैंक 1 की तैयारी किया तो शाहरुख खान का मूवी नहीं चल रहा है कि रैंक 1 का तैयारी किया तो रैंक 1 मिल ही जाता है। लाइफ में हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन वो ब्रांच मिल गया जो रैंक 1 को मिलता। आईआईटी कानपुर का सीएस रैंक 1 को भी मिलता, उसको भी मिला। तो पहला चीज जो अच्छा चीज था। दूसरा कि आप जब तारों को छूने की कोशिश करते हैं ना, बहुत अच्छे बड़े चीज को छूने की कोशिश करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, तो माने कि आप तारा नहीं छू पाइएगा, होता है ना, लाइफ होता है, लक होता है, लेकिन चांद तो छू लीजिएगा ना। अगर आप बहुत बड़ा टारगेट रखें तो उसको भले नहीं छू पाइए, लेकिन बीच में जो इंटरमीडिएट टारगेट है वो भी बहुत बड़ा टारगेट है, चांद छू लीजिएगा ना। आप समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? इफ यू आर ट्राइंग टू कैच द स्टार्स, मेक्स बी श्योर दैट योर हैंड्स विल नेवर गो इनटू द मड। कीचड़ में तो नहीं ना जाएगा आपका हाथ, आपका हाथ हमेशा ऊपर उठेगा, है कि नहीं? यस सर। मेरा कहना है
कि ऑलवेज एंड ऑलवेज रेस्पेक्ट योरसेल्फ। मेरे से मत पूछे कि सर मेरा परफॉर्मेंस कैसा है, सर आप बताइए। अगर मान लीजिए हम उल्टा बोल दें तो आप डिप्रेस हो जाइएगा क्या? डोंट गिव द फ्रीडम टू समबडी एल्स टू डिसाइड योर फ्यूचर, योर कैरियर, योर टैलेंट, हम ये कह रहे हैं। लेकिन उसी समय आप में इतना टसन होना चाहिए कि आपको अगर लग रहा है कि 4 घंटा पढ़ने से काम नहीं चलता है, सामने वाला इतना टैलेंटेड है कि 4 घंटा में ही पढ़ पा रहा है, तो आप पहले एक्सेप्ट कीजिए कि दैट पर्सन एक्स usually is very talented, he can study in 4 hours and score good. I am not good enough to study in 4 hours. तो पहले एक्सेप्ट कीजिए कि हम 4 घंटे में नहीं, हम 8 घंटे पढ़ेंगे। मेन मुद्दा है एग्जाम में परफॉर्म करना ना। ईगो पे मत लीजिए कि मेरा दोस्त 4 घंटे में पढ़ लेता है, हम भी 4 घंटे में पढ़ेंगे। नो माय डियर, यू सेट योर ओन गोल्स। आप 8 घंटे पढ़ के वो अचीव कीजिए। मेन इशू इज क्वालिफाइंग दैट एग्जाम। टारगेट पे फोकस रखिए, प्रोसेस पे नहीं। प्रोसेस इज पर्सन डिपेंडेंट, है कि नहीं? यस सर। तो हम ज्यादा नहीं समझ लेंगे, हम यही बोलना चाहते थे, ऑलवेज रिस्पेक्ट योरसेल्फ। और आप लोग के लिए जो जितनी जल्दी हार मान लेते हैं, तो आप ही लोग के लिए बोलते हैं, 2 शायरी बोलना चाहेंगे। एक है, बिल्कुल सर। एक है कि शाख से गिर जाएं, शाख समझते हैं ना, ब्रांच। यस सर। यस सर। शाख से गिर जाएं वो पत्ते नहीं, हम तूफान से कह दो औकात में रहे। ठीक है, तो इतनी जल्दी हार नहीं मानिए। और दूसरा है कि आती है तो आने दो, ये तूफान क्या लेके जाएगी, मैं तो तब डरूंगा जब ये मेरा हौसला ले जाएगी। वाह 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 वाह। तो हार नहीं मानना है, सबसे बड़ा लाइफ का ये सबसे बड़ा वर्च्यू होता है कि आपको हार नहीं मानना है। हमसे नहीं पूछना है कि सर हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आप अपने आप से पूछिए, ठीक है ना? इतना ही कहना चाहेंगे। यस सर, इसी बात पे कहते हैं सर, डिप्रेशन, अगर डिप्रेशन बुलाती है मगर जाने का नहीं, कहते हैं ना, डिप्रेशन बुलाती है मगर जाने का नहीं है, उसकी गलियों में कभी कदम रख के वापस आने का नहीं है। चलिए इसमें एक लाइन और ऐड कर दे हम कि प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ ऑलवेज ट्राई and your emotions. Problems in your life always try to play with you and your emotions, but makes you play with them. वाह सर, इंग्लिश आता था बाउंसर के बाद कि सब ठीक था। ठीक है ना? आपने एकदम सही बोला सर कि हमें खुद को जज करना चाहिए, ना कि दूसरों के जजमेंट पे रहना चाहिए। एक दौर मेरे भी जीवन में कुछ ऐसा ही था, जब 80 में से मैथ्स में 17 नंबर आए थे, और फिर एक दौर वो आया जब मैथ्स ओलंपियाड में स्टेट लेवल पे था। ये सब मेरे शिक्षकों का कमाल है। उन्होंने बस मुझे एक ही बात बोला था जब मैं क्विट करना चाह रहा था कि कायर मत बनो, अपने कलम को उड़ने दो। तो मैं आप सभी शिक्षकों को अपनी एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करता हूँ। मैं बैठा रो रहा था, मैं बैठा रो रहा हूँ, अपने अस्तित्व को खोज रहा हूँ। कौन हूँ मैं, क्यों हूँ मैं, पूछ रहा हूँ, अपनी धुंधली तस्वीर बना रहा हूँ। मैं बैठा रो रहा हूँ, इस मोह माया को छोड़ रहा हूँ। इस दुनिया में सब दिखावा है, हर एक पल छलावा है। मेरे अंदर गजब की आग जल रही है, अजब की शक्ति बह रही है। मैं इसे समझ रहा हूँ, यह कहकर मैं खुद को छल रहा हूँ। मैं इसे समझ रहा हूँ, यह कहकर मैं खुद को छल रहा हूँ। मैं बैठा रो रहा हूँ, अपने अस्तित्व को खोज रहा हूँ। कुछ करना है, अपने आप से आगे बढ़ना है। किसी ने मुझे कायर कहा था, उसे छलना नहीं साबित करना है। मुझे साबित करना है, उन्हें नहीं अपने आप को। पर क्या करूं, अपने आप से ही पूछ रहा हूं। मैं बैठा रो रहा हूं, अपने अस्तित्व को खोज रहा हूं। अब मैं रो नहीं सकता, अब मैं रो नहीं सकता, क्योंकि मुझे कुछ करना है। मेरे हाथों को अभी कुछ करना है जो कर ना सका मैं आज तक, उस पन्ने को गढ़ना है। हाँ, मेरी कलम को उड़ना है, अनंत आकाश तले एक दिन रचना है। हाँ, मेरी कलम को उड़ना है। हाँ सर, मेरी कलम को उड़ना है। धन्यवाद सर। अरे वाह, बहुत अच्छा सर। सीएबी सर, मैं चाहूंगा कि अब आप मुझे स्क्रीन शेयरिंग की परमिशन दें, ताकि मैं अपने तेजस द्वारा गाया हुआ गाना शेयर कर सकूं सबके साथ। 1 मिनट बच्चों, बस दे रहा हूँ स्क्रीन शेयरिंग। कहीं परमिशन? हाँ बिल्कुल, परमिशन गिवन। ओके बेटा, परमिशन दे दी, आप शेयर करें।
तो प्रस्तुत है हमारा तेजस का प्रिय सर को समर्पित गान। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, ये अंधेरा छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर कुछ न आता नजर, सूखा सूरज छिपा जा रहा है, तेरी रोशनी में वो दम, तू अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। थैंक यू सर, थैंक यू तेज। आपने अपना प्यारा सा गान हमारे सर के लिए गाया, सबको सुनाई तो दिया ना। हेलो, यस, क्या मेरी आवाज आप तक जा रही है? बिल्कुल। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। एंड थैंक यू 56-4 बच्चों लोग, यानी मेरे दोस्तों लोग, तुम लोग आए और बिना कोई उद्दंडता मचाए हुए अटेंड किए इस पार्टी को, और खाना घर में बना के खा लेना खुद से। थैंक यू सर, हैप्पी टीचर्स डे सर फ्रॉम अस। सब एक साथ बोलेंगे, सब अपना अपना माइक अनम्यूट करो और सब एक साथ बोलेंगे 3, 2, 1। हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू ऑल। थैंक यू थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ओके, और हाँ सर, गिफ्ट उधार ही रहेगा जीवन भर याद रखने के लिए। एकदम एकदम। थैंक यू सर। तुम लोग रैंक दोगे वही हमारा गिफ्ट होगा। ओके बच्चों, थैंक यू। मेहनत है दोनों की तरफ से। ओके देन। ओके सर, थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। सब घर में बना के खा लो, चलो।